Hello students, today we will study class 9 English, fifth poem of the book Beehive, that is A Legend of Northland. So this poem, A Legend of Northland, is written by Phoebe Carey and it is a traditional and a popular story जिसको ballad के form में लिखा गया है and ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A Legend of Northland is a ballad. So Legend of Northland एक ऐसी स्टोरी है जो लोग अपनी आगे जनरेशन्स को सुनाते हैं और ये स्टोरी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती आ रही है. सो इफ़ एनी स्टोरी इज़ पास्ड ऑन लाइक दिस इट इज़ नोन एज अ बलाड. सो हियर अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ ऑल्सो अ बलाड. So, this poem actually narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इस पोएम में हमें पता चलता है एक ओल्ड लेडी जो कि एक बेकर है और वो कैसे अपनी ग्रीड अपनी लालच की वजह से सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है एंड व्हाट कर्स डिड द सेंट पीटर गेव दैट लेडी. सो वी रीड नाउ. So, in the first stanza, the poet has said, away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So, पहले stanza में the poet tells story of a far off place called Northland. यानी कि ये जो पूरी पोएम है ये नॉर्थलैंड में बेस्ड है. It lies in the extreme north end in the world, somewhere around the North Pole. और नॉर्थलैंड वर्ल्ड के एक्सट्रीम नॉर्थ पोल पे है. Okay, here the winter season has very long nights but very few hours of the day. और वहाँ पे विंटर सीजन में जो नाइट्स होती है वो लॉन्ग होती हैं और डेज जो हैं वो शॉर्ट होते हैं. दैट मीन्स जल्दी अंधेरा हो जाता है वहाँ पे बहुत. And the nights are so long and so cold that people cannot sleep through them. और वहाँ पे रात में इतनी ठंड हो जाती है और इतनी लंबी रातें हैं कि लोग वहाँ पे सो ही नहीं पाते ढंग से. So this is what poet has said in the first stanza. In the second stanza, the poet says, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. सो अब इस स्टांजा में सेकंड स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि जब नॉर्थलैंड में ठंड बहुत ज़्यादा होती है और पूरा नॉर्थलैंड स्नो से कवर्ड होता है तो लोग स्लेजेस यूज़ करते हैं. स्लेजेस आर ड्रिवन बाय फास्ट रनिंग रेनडियर्स. और वहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको हेवी वुलन क्लोथ्स पहना देते हैं विच आर मेड अप ऑफ फर. और उन क्लोथ्स में the children look very funny and they look like young ones of bears. यानी कि bear के बच्चे लगते हैं वो. So this is what he has said in the second paragraph. In the third paragraph he says, they tell them a curious story. I don't believe this true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. इस स्टांजा में पोएट सेज कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, क्यूरियस लेजेंड सुनाते हैं. और पोएट ये बात पे श्योर नहीं है कि वो लेजेंड सच में हुआ था या ऐसे ही कहानी बन रखी है. बट पोएट ये कहता है कि अगर आपको वो लेजेंड अगर आप सुन लो तो यू गेट अ वेरी सिग्निफिकेंट मॉरल लेसन फ्रॉम दैट टेल विच इज़ टोल्ड टू द चिल्ड्रन बाय देयर parents. So what is that legend? Now we will study that in the fourth stanza. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. So the story narrated in the Northland is about the good Saint Peter, one of the 12 apostles of Jesus Christ. तो वहाँ पे कौन सी स्टोरी इतनी फेमस है? स्टोरी इज़ अबाउट सेंट पीटर. सेंट पीटर जब वहाँ पे रहा करते थे वो तब की स्टोरी है जो आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जा रही है. सो
कहानी ये है कि सेंट पीटर, जो कि जीसस के 12 अपोस्टल्स में से एक थे, वो एक बार हेवन से नीचे वर्ल्ड में आए, यानी कि हेवन से अर्थ में आए, ताकि वो लोगों को गॉड के बारे में प्रीच कर सके. ही ट्रैवल्ड एंड वैंडर्ड टू फुलफिल हिज मिशनरी पर्पस. वो जब नॉर्थलैंड में आए तो ही traveled here and there, he wandered here and there, and he preached people about what is God. In the fifth stanza, the poet says, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. So, what is the meaning of hearth? Hearth is the area in front of the fireplace where cakes are baked. You must have seen, big ovens, where pizzas are baked. So that place is known as a hearth. It's made up of, bricks and cement and things like that. So that place is known as a hearth. सो ही सेज दैट जब सेंट पीटर सब लोगों को प्रीच करके आ रहे थे तो वो एक कॉटेज के पास पहुंच गए. एंड कॉटेज के अंदर एक लिटिल वुमन थी हु वाज मेकिंग केक्स, और वो फायर प्लेस के पास यानी कि हर्थ के पास उन केक्स को बेक कर रही थी. Now, in the sixth stanza, he says, and being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from a store of cakes to give him a single one. तो सेंट पीटर क्योंकि सुबह से घूम रहे थे एंड ही वॉज फास्टिंग विद एन एम्प्टी स्टमक, वो उनका व्रत था, ही वॉजंट ईटिंग. ओके, सो सुबह से वो घूम रहे थे एंड नाउ ही वॉज वेरी hungry, and he was very weak and tired because of her hunger and travel, that he was on the verge of fainting. वो इतना थक गए थे कि इतना भूखे थे कि he was on the verge of fainting, मतलब बेहोशी होने वाले थे. तो उन्होंने उस लिटिल वुमन से रिक्वेस्ट की कि उनको बस एक केक दे दो अपने स्टोर में से. ओके, ऑफ कोर्स द वुमन हैज हैड अ स्टोर, तो उनके पास बहुत सारे केक थे. तो सेंट पीटर ने उनसे एक केक मांगा आउट ऑफ दी सो मेनी केक्स इन हर स्टोर, बिकॉज सेंट पीटर को बहुत भूख लग रही थी एंड ही वॉज अबाउट टू फेंट. नाउ द नेक्स्ट stanza. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So when Saint Peter asked the lady for just one cake, the lady made a very little cake. Okay, so she made a very thin cake. उसने बहुत कम बैटर से केक बनाया, बट जब केक बेक हुआ तो ऑफ कोर्स द केक राइज्ड. ओके, केक ऑफ कोर्स राइजेज आफ्टर बेकिंग. तो जब वो राइज हो गया तो उसको लगा कि यार ये केक तो बहुत ही बड़ा है देने के लिए. वाई वुड शी गिव इट फॉर फ्री? शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, शी वॉज वेरी ग्रीडी. तो नेक्स्ट स्टैंजा में दे रखा है कि तब उसने फिर क्या किया. देयरफॉर शी नीडेड अनदर and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो उसने एक और केक को बनाया पहले वाले केक से और छोटा बैटर डाल के, पर जब वो बेक हुआ तब वो फिर से उतना ही बड़ा था जितना पहला केक था. So she was again and again trying to make a smaller cake for that saint. Then she took a tiny scrape of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. उसके बाद एट लास्ट उसने एक डो का पीस लिया, उसको बहुत ही फ्लैट रोल कर दिया यानी कि बेल दिया, एंड देन शी मेड अ केक विच वॉज एज थिन एज अ वेफर. एक वेफर जितना पतला उसने डो को बेक करने के लिए रखा, पर वो जब राइज हुआ तब भी उसको लग रहा था कि ये केक भी बहुत बड़ा है. ओके, शी वॉज सो मिजरीली दैट शी कुडंट बियर इवन टू गिव अवे दैट थिनेस्ट केक टू द सेंट. देन फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ are yet too large to give away, so she put them on the shelf.
तो जब वो केक बेक कर रही थी तो वो यही बोल रही थी कि जब ये केक्स को मैं अपने लिए बनाती हूँ और मैं खुद खाती हूँ तब तो ये एग्स बहुत छोटे लगते हैं, बट नाउ मुझे जब इनको देना पड़ रहा है तो पता नहीं इतने बड़े कैसे लग रहे हैं ये। तो वो जितने भी केक बना रही थी और जो उनको उसको बड़े बड़े लग रहे थे वो उनको शेल्फ पे रखी जा रही थी। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब सेंट पीटर ने उस वुमन से सिर्फ एक सिंगल केक मांगा था, पर वो लेडी इतनी ग्रीडी थी दैट वो सेंट पीटर को एक पतला सा थिनेस्ट ऑफ ऑल द केक्स भी देने को तैयार नहीं थी। उसको लग रहा था कि वो भी बहुत ही बड़ा केक है। Of course, Saint Peter was feeling very weak because of hunger and fatigue, जिस वजह से उनको गुस्सा आ गया on the utterly selfish behavior of the women. Okay, because he got very provoked. Okay, the negativity of the women was too much for the divine saint to pardon. यानी कि जो जितनी नेगेटिव वो औरत थी, that women was so negative कि एक divine saint भी उनको माफ़ नहीं कर सकता था. Pardon means to माफ़ करना. So, and he said, you are far too selfish to dwell in a human form and to have both food and shelter and fire to keep you warm. When Saint Peter was angry at the greed of the little woman, he told her that she did not deserve to lead the life of a human being. तो उसके एक भी केक उनको ना देने पर सेंट पीटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड ही सेड टू दैट वुमन कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम एक ह्यूमन होने के लायक ही नहीं हो। हालांकि गॉड ने तुम्हें फूड, शेल्टर, फायर, एक कंफर्टेबल लाइफ दी है, पर तुम्हारे अंदर ह्यूमन इमोशंस जैसे कि सेल्फलेस लव और काइंडनेस बिल्कुल नहीं दिए हैं, इसलिए यू डोंट डिज़र्व टू बी इन दिस ह्यूमन फॉर्म एंड enjoy the comfortable and warm life that she was given. सो सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ऑन दैट वुमन एंड वो गुस्से में आके क्या बोलते हैं देखते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो उस पर जब गुस्सा आ जाता है तो सेंट पीटर उस वुमन को श्राप दे देते हैं, कर्स दे देते हैं। ओके, तो वो क्या बोलते हैं उसे? He said that she would no longer enjoy a human life and its comfort of food, shelter, and warmth. Instead of living a human life, she will become a bird. कौन सी bird? Woodpecker, who would have to build her own nest and would have to keep digging in holes in the hard and dry trunks of tree for her meager food. तो गुस्से में आके सेंट पीटर ने उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम अब एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक वुड पैकर बन जाओगी, एक बर्ड बन जाओगी, जिसको अब खुद का नेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा और ट्रंक्स में पूरा दिन बोर करते रहना पड़ेगा। शी हैज़ टू कीप डिगिंग इन होल्स हार्ड ताकि उसको अपना थोड़ा सा खाना मिल सके, बिकॉज शी वॉज टू सेल्फिश टू बी अ ह्यूमन. So this is what he said in this paragraph. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was chained to a bird. सेंट पीटर के कर्स देने के बाद ही एकदम बाद, श्राप देने के एकदम बाद, जो लिटिल वुमन थी वो एकदम से वुडपेकर बन गई एंड वो उसके जो किचन था जहाँ पे वो बेक कर रही थी वहाँ की चिमनी से निकलते हुए बिना कुछ बोले शी फ्लू ऑन द टॉप एंड वो एक वुड पैकर बन चुकी थी. ओके, और सेंट पीटर ने एक्चुअली उसको क्यों श्राप दिया था? बिकॉज शी वॉज वेरी सेल्फिश. ओके, शी लैक्ड ह्यूमन वैल्यूज, शी वॉज नॉट she was not worthy to be a human. She lacked kindness, charity, and she was very greedy, selfish, and a very cunning lady.
So she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. तो जो उस लेडी ने वुडपेकर बनने से पहले कपड़े पहने हुए थे वो तो सारे चिमनी में जल जल चुके थे, बट उसकी एक स्कारलेट कलर की कैप, स्कारलेट इज़ एक्चुअली अ शेड ऑफ रेड कलर, तो उसकी एक स्कारलेट कलर की कैप अभी भी उसके सिर पे ही थी. इट वॉज देन बर्नड, पर बाकी के जो क्लोथ्स थे उसके वो चिमनी में बर्न हो गए थे. एंड शी टर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. ओके, वो चिमनी में जो सूत होता है उससे ब्लैक हो गई थी पूरी. And every country school boy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो इस स्टोरी के मुताबिक जो वुडपेकर है, which every school going young boy can see in the forest, okay, is in fact the little woman turned bird. तो एक्चुअली में पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को ये बोलते हैं कि जो तुम्हें स्कूल जाते वक्त जो वुडपेकर दिखता है ना, वो वही लेडी है जो कि वुडपेकर बना दी गई थी बाय द कर्स ऑफ द सेंट. Till this day, she lives here in the tree, and as per the curse of Saint Peter, she has to bore the tree trunks laboriously all day to get her food. Okay? Let's understand the title of the poem. So, the title of the poem clearly states that the poem is about a legend from the cold region of Northland. इस पोएम के टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो पोएम है, ये जो लेजेंड है एक्चुअली, ये एक कोल्ड रीजन नॉर्थलैंड का है. लाइक एवरी लेजेंड, इट इज़ अ स्टोरी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड बिलीव टू बी ट्रू इवन दो देर इज़ नो एविडेंस टू एस्टैब्लिश इट्स ट्रुथ. हर एक लेजेंड, हर एक पारंपरिक कथा जिसको हम कहते हैं, उसकी तरह ये स्टोरी भी इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इसको सच माना जाता है इवन दो इसके सच होने की कोई एविडेंसेस नहीं है. द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट एज इट इंट्रोड्यूस द नरेटिव फॉर्म ऑफ द स्टोरी विच इज़ टू इम्पार्ट द मॉरल वैल्यूज़. पोएट ने इस पोएम में खुद ही बोल दिया है कि इस स्टोरी का सच होना या ना होना वो प्रूव नहीं है, बट इट इज़ डेफिनेटली श्योर कि इस स्टोरी को जान के वी लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन. The place where the action of the story takes place is also clearly mentioned in the title. और जहाँ पे ये स्टोरी हो रही है वो जगह भी is mentioned in the title. Hence, the title stands apt for launching a mythological tale. Okay. Let's understand the theme and message of this poem. So the poem is based on the theme that greed is a grave sin. इस पोएम की बेसिकली थीम यही है कि जो लालच है वो एक सिन है, एक लालच करना इज़ एक्चुअली पाप के. ग्रीडी पीपल डू नॉट डिज़र्व द ब्लेसिंग एंड द कम्फर्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं उन्हें एक ह्यूमन लाइफ बिताने का बिल्कुल हक नहीं है. ह्यूमन बींग्स शुड दस एक्वायर क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस, फेलो फीलिंग एंड एम्पैथी. इसलिए ह्यूमन बींग्स को काइंडनेस, फेलो फीलिंग मतलब भाईचारा, और एम्पैथी को एक्वायर करना चाहिए. द लिटिल वुमन्स ग्रीड स्टॉप्ड हर फ्रॉम शेयरिंग इवन हर स्मॉलेस्ट केक विद हंग्री सेंट पीटर, दस अर्निंग हिज रैथ. जो लिटिल वुमेन थी जो केक बेक कर रही थी, वो इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी कि उसकी ग्रीड ने उसे सेंट पीटर को एक सबसे छोटा केक देने से भी रोक दिया, जिसकी वजह से सेंट पीटर को उसे श्राप देना पड़ा. नाउ द मैसेज. द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट एज ह्यूमन बींग्स वी शुड हैव पॉजिटिव क्वालिटीज़ लाइक अफेक्शन, लव, फेलो फीलिंग, सिंपैथी, जेनरोसिटी एंड सेंस ऑफ शेयरिंग. पहला मैसेज ये मिलता है कि क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम में ह्यूमन बींग्स जैसी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, जो कि होती हैं अफेक्शन, काइंडनेस, लव, फेलो फीलिंग, सिंपैथी, जेनरोसिटी और एक सेंस ऑफ शेयरिंग. हमें शेयरिंग करना आना चाहिए. द पोएट ऑल्सो ब्रिंग्स फोर्थ द आइडिया दैट पीपल विद नेगेटिव inhuman values like selfishness, greed and cruelty are ultimately punished.
सेकंड मैसेज ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, जिन लोगों में इनह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव लोग, ग्रीडी लोग और क्रूअल लोग are definitely and ultimately punished. The blessings of human life with food, shelter, and warmth have to be earned through a good and moral conduct. और जो ह्यूमन लाइफ में हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती है जैसे कि फूड, शेल्टर और वार्मथ, वो गुड और मॉरल कंडक्ट से वी हैव टू अर्न दैट. So that brings us to the end of this video and end of this chapter too. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries, suggestions or questions to ask, you can ask them in the comment box below.